کہ اسرائیل جو مرضی چاہے کرے، کھلی چھوٹ، صہیونی ریاست کی گارنٹی کون دے گا؟ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے غیر مسلح ہونے کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی امن منصوبے کی بعض شقیں تبدیل کرنے پر زور دیا۔ قطر میں اہم مشاورتی اجلاس نے واضح کر دیا کہ قومی اصولوں پر سمجھوتا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ القسام بریگیڈ کے سربراہ نے جنگ جاری رکھنے کا کہہ دیا۔ کون دے گا اسرائیل کی گارنٹی؟ فلسطین کے اندر یا باہر؟ کیا ضمانت ہے کہ اسرائیل حماس کے رہنماؤں کو قتل نہیں کرے گا؟ عالمی برادری یقین دلائے کہ اسرائیلی فوج غزہ سے مکمل طور پر نکل جائے گی۔ حماس نے امریکی صدر کے غزہ امن منصوبے پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا۔ قطر، مصر اور ترک حکام کے ساتھ مشاورت میں کہا کہ حماس منصوبے کی بعض شقوں میں تبدیلی چاہتا ہے۔ حماس رہنما طاہر النونو نے واضح کر دیا کہ مجاہدین برسوں پر محیط جنگ بندی کے لیے تیار ہیں، لیکن اسرائیلی قیدیوں کی رہائی مکمل جنگ بندی اور اسرائیلی انخلا سے مشروط ہے۔ حماس بدران بولے ہر تجویز پر بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن قومی اصولوں پر سمجھوتا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رپورٹ کے مطابق القسام بریگیڈ کے سربراہ عز الدین الحداد اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے حق میں ہیں۔ غزہ کی جانب جانے والا سمودھ فلوٹیلا ہائی رسک زون میں داخل ہو چکا ہے۔ اسرائیلی حملے کا خدشہ، فلوٹیلا میں شامل جہازوں کو روکنے کی دھمکی، صہیونی فوج کی 2 کشتیوں کو گھیرنے کی کوشش، فضا میں ڈرونز بھی پرواز کرتے رہے۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کرتا ہے کہ فلوٹیلا کا رخ موڑ کر غزہ کے بجائے اسرائیلی شہر اسدود میں لنگر انداز کرانے کی تیاریاں جاری ہیں۔ اسرائیلی حکومت نے 500 پولیس اہلکار اسدود بندرگاہ پر تعینات کر دیے۔ غزہ میں صہیونی دہشت گردی جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 51 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 66,148 ہو گئی۔ قطر پر کوئی بھی حملہ امریکہ پر حملہ ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیا حکم نامہ جاری کر دیا۔ قطر کی سلامتی یقینی بنانے سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق کسی حملے کی صورت میں امریکہ دفاع اور امن و استحکام کی بحالی کے لیے عسکری، معاشی اور سفارتی اقدام کرے گا۔ قطر مشرق وسطی اور اس سے باہر ثابت قدم اتحادی ہے۔ اسرائیل کے جارحانہ عزائم امن کے لیے خطرہ، صہیونی اخبار۔ یروشلم پوسٹ کے مطابق ایک اعلیٰ عسکری عہدیدار نے بتایا ہے کہ اسرائیل نے کئی ممکنہ منصوبے بنا رکھے ہیں جن میں ایران پر دوبارہ حملہ شامل ہے۔ عہدیدار کا کہنا تھا کہ ہم مشرق وسطی اور ایران کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، ایران پر حملے سمیت مختلف اقدامات کے لیے تیار ہیں۔ آگے بڑھیں، بات کریں بھارتی بورڈ سے معافی مانگی نہ مانگوں گا، بھارتی میڈیا کی گھٹیا چال پر محسن نقوی کا منہ توڑ جواب۔ صدر ایشین کرکٹ کونسل نے انڈین میڈیا کو جھوٹا قرار دے دیا، کہا میرے خلاف گھناؤنی سازش سستے پروپیگنڈے کے سوا کچھ نہیں، انڈین کپتان کو ٹرافی چاہیے تو اے سی سی کے دفتر آ جائیں، خوش آمدید کہوں گا۔ ایشیا کپ کے بعد ویمنز ورلڈ کپ بھی سیاست کی بھینٹ چڑھ گیا۔ بھارت نے کھیل کے میدان میں پھر زہر گھول دیا۔ بھارتی صحافی کے مطابق پاک بھارت خواتین ٹیموں کے میچ میں بھی ہینڈ شیک نہیں ہوگا۔ بھارتی بورڈ کے سیکرٹری نے کہا کہ ہاتھ ملانے یا گلے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ سیاسی منظرنامے پر نظر ڈالیں، تنقید پر ہاتھ توڑنے کی دھمکیاں دی گئیں، اگر سندھ سے ایسی آوازیں اٹھیں گی تو پھر کیا بنے گا؟ کیا ہم زبانیں بند کر کے بیٹھ جائیں، پنجاب چھوڑ کر چلے جائیں؟ جہاں غلطی ہوگی اس پر اپنی رائے دیں گے، نہیں مانیں گے تو تنقید اور احتجاج کریں گے۔ پیپلز پارٹی رہنما قمر زمان قاہرہ کی پریس کانفرنس، مریم نواز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اپنی باتوں پر غور کریں، ماضی کے زخموں کو تازہ نہ کریں۔ میرا پانی ہے، میرا پیسہ ہے، میرا سارا کچھ ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر ہم رائے دیتے ہیں آپ نہیں سنتے، ہم تنقید کرتے ہیں تو آپ اس پہ سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ پنجاب کے عوام کی طرف اٹھنے والی انگلی مریم نواز توڑ دے گی۔ کہتے ہیں کہ میں کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، جو انگلی ادھر اٹھے گی میں اس انگلی کو توڑ دوں گا، میں چھوڑوں گی نہیں۔ مجھے تو اس بات کی حیرانگی ہے کہ سوال سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے طریقہ کار پہ اٹھائے گئے، لیکن اس کے جواب میں سندھ حکومت کو ٹارگٹ کر کے جواب دے دیے گئے۔ آپ صرف سی ایم پنجاب نہیں ہیں، آپ میاں محمد نواز شریف کی بیٹی ہیں، آپ میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر پاکستان کی بھتیجی ہیں، آپ مسلم لیگ کی لیڈر ہیں، آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ مسلم لیگ کے الفاظ ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ میں کسی کو بولنے نہیں دوں گی، زبان بند کر دوں گی، ہاتھ توڑ دوں گی، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اس ملک میں پہلے بھی پنجاب کے اوپر نعرے لگے تھے، ہم تو آج تک اس نیرو نیشنلزم سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حکومت کیجیے لیکن باقیوں کے حق کو تو ختم کرنے کی کوشش نہ کیجیے، نہ کوئی کر سکا۔ صرف اعلانات نہیں، عملی اقدامات سے خدمت کی سیاست کی، وہ کام بھی کیے جن کے اعلان نہیں کیے تھے۔ خیبر پختونخوا سے پنجاب میں داخل ہوتے ہی واضح فرق نظر آتا ہے۔
वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मरी में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कहा, गुज़िश्ता हुकूमत के 4 साल लूट खसूट का दौर था। मरी में गैर कानूनी तामीरात बर्दाश्त नहीं करेंगे। मरियम नवाज ने सिर्फ ऐलानात नहीं किए, मरियम ने इफ्तिताह बाद में किया है, ऐलान बाद में किया है, सड़क पहले बना दी अल्हम्दुलिल्लाह। अवाम की खिदमत के लिए हमारे दिन रात डेडिकेटेड है। तो अभी जो पंजाब का बदतरीन सैलाब आया, तो मरियम नवाज शरीफ आपकी वजीर आला, आपकी बहन और आपकी बेटी ने आपकी तक जब से सैलाब आया शायद 2 या 3 बार दफ्तर गई हूँ। मैं कभी एक शहर में होती हूँ, कभी दूसरे शहर में होती हूँ, कभी तीसरे शहर में होती हूँ। जो आपको ये कहते हैं कि हम चुप करके बैठ के दफ्तर में काम करते हैं, वो काम नहीं करता। खैबर पख्तूनख्वा से जब आप बाड़ियां से मरी के अंदर आते हैं तो आपको एक विजिबल डिफरेंस नजर आता है, लगता है वो कोई और मुल्क है, ये कोई और मुल्क है। माशाल्लाह, मरी को पिछले वो जो लूट खसूट का 4 साल का दौर था, मरी को सिर्फ उन्होंने जंगलात काटने के लिए, दरख्त काटने के लिए, लकड़ी काट कर टिम्बर माफिया ने बेचने के लिए और 5-5 लाख रुपए रिश्वत लेकर इलीगल कंक्रीट बिल्डिंग्स का जो जंगल यहाँ पर बना दिया। कुछ तो मैंने गिरा दी क्योंकि आपका जो हक था अल्लाह ताला ने आपको इतनी खूबसूरती दी हुई है। मैं बेहंगम और जो इलीगल बिल्डिंग्स हैं उनको मरी का हुस्न खराब करने की इजाजत नहीं दूंगी। हुकूमती इत्तेहादियों में दूरियों का मामला, पीपल्स पार्टी ने मरीम नवाज को बयान वापस लेने का मुतालबा कर दिया। इत्तेहादियों ने मामलात अफहाम तफहीम से हल करने और एक दूसरे पर सख्त ज़बान इस्तेमाल न करने की यकीन दहानी करा दी। इसहाक डार की यकीन दहानी पर मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में ख़त्म हुए। लीगी रहनुमाओं ने जयालों की बात अपनी क़यादत तक पहुँचाने के लिए वक्त मांग लिया। एक और अहम मामले की बात करेंगे। धीरकोट आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्लह बलवाइयों की बिला इश्तियाल फायरिंग, 3 पुलिस एहलकार शहीद, 9 जख्मी हो गए। शहीद कांस्टेबल खुर्शीद और कांस्टेबल जमील का ताल्लुक बाग, जबकि कांस्टेबल ताहिर रफ़ीक का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है। शहीद और जख्मी पुलिस एहलकारों के खानदानों ने कातिलों को सख्त सजाएं देने का मुतालबा किया है। मुसल्लह बलवाइयों के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे सख्त कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। किसी भी मुसल्लह जत्थे को कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, अवामी एक्शन कमेटी ने पुरअमन एहतजाज की आड़ में आज़ाद कश्मीर के अवाम को बंद गली में धकेल दिया। तशद्दुद का रास्ता काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा, 90% मुतालबात मान लिए, दीगर 2 मुतालबात पर भी बातचीत के दावत देते हैं। एक्शन कमेटी ने आज़ाद कश्मीर के अवाम के जो इश्यूज़ हाईलाइट किए और जो मुतालबात पेश किए, वो 90% हमारी मौजूदगी में आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने तस्लीम किए। मेरी अब भी ये गुजारिश है कि जो 2% हैं उन पे खुले दिल से हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान आपको रास्त दावत दे रहा हूँ, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जानिब से फेडरल मिनिस्टर आपको मुज़ाकराती अमल को बहाल करने की दावत दे रहे हैं। बलोचिस्तान से खबर है, जहां भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन, कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन, 21 खारिज मारे गए। कोयटा में 10, जिला केच में 3, जबकि योब और शिरानी में 8 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। ISPR के मुताबिक खुजदार में छुपे दहशतगर्दों की खवातीन का रूप धार कर फरार होने की कोशिश भी नाकाम बना दी गई। 4 आम दुश्मनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में होने के बावजूद एक्स अकाउंट फाल कैसे है? NCCIA ने बानी PTI से एक बार फिर तफ्तीश करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक तफ्तीश सवालनामे के तहरीरी जवाब की रोशनी में की जाएगी। NCCIA ने 21 निकाती सवालनामा बानी PTI के हवाले किया, जिसमें पूछा गया कि जेल में होने के बावजूद आपका एक्स अकाउंट फाल कैसे है, ये कहां से और कौन ऑपरेट करता है। NCCIA तफ्तीशी टीम 2 बार जेल में मुलाकात कर चुकी। बानी PTI ने टीम से ताउन नहीं किया। जबकि उमर अयूब, शिबली फराज और अब्दुल लतीफ चित्राली पहले सरेंडर करें। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन नाअहली केस में हुक्म इम्तना वापस ले लिया। अदालत ने करार दिया है कि दरख्वास्त गुजारों को ATC ने सजा सुनाई, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। इस सूरत हाल में इनको रिलीफ नहीं दे सकते। जस्टिस सैयद अरशद अली ने महफूज फैसला सुना दिया। 24 सितंबर को फैसला महफूज किया गया था। मुल्की बजट साजी में बड़ी तब्दीली, आइंदा साल का बजट FBR के बजाय वजारत खजाना का टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग, कहा IMF से मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हो रही है, मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका, यूरो बॉन्ड्स की बरवक्त अदायगियाँ मजबूत माली नज़्म ज़ब्त की अक्कास हैं, टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए इजाफी टैक्स इक़दाम भी ज़ेर गौर नहीं। वज़ीर खजाना ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में रवा माह वाशिंगटन में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस कराने का भी इंदिया दे दिया। बोले, तवानाई, कानकनी और टेक्नोलॉजी में अमरीकी सरमायाकारी बढ़ेगी।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी। IMF मिशन को मुल्क में हालिया सैलाब से नुकसानात पर ब्रीफिंग दी गई। नुकसानात का नजरसानी शुदा इब्तदाई तखमीना तैयार कर लिया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदे खुसूसी शकील अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शकील बताएगा क्या तखमीना लगाया गया है? देखिए, पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात जारी हैं। IMF को सैलाब से होने वाले नुकसानात के बारे में बताया गया है और ज़राए का ये कहना है कि नुकसानात का तखमीना 700 अरब रुपए तक पहुंच गया है। इब्तदाई तखमीना 360 अरब का था, लेकिन अब ये दुगना हो गया है। इसमें मुख्तलिफ सूबों में फसलों के नुकसानात हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, इसके अलावा लाइफ स्टॉक जो है उसका नुकसान हुआ। तो IMF को इन नुकसानात के बारे में बताया गया है, लेकिन अहम बात यह भी है कि मुख्तलिफ सूबों से वफाकी हुकूमत अभी भी मालूमात और डाटा जमा कर रही है और इसको मज़ीद अपडेट किया जा सकता है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है, ज़राए का ये कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान ने IMF की एक बड़ी डेडलाइन जो है वो पूरी की है। पाकिस्तान लेबर फोर्स सर्वे और इसके अलावा हाउस होल्ड इकनॉमिक सर्वे के नताइज जारी करने के लिए IMF ने पाकिस्तान को दिसंबर 2025 की डेडलाइन दे रखी थी, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि ये दोनों सर्वेज के नताइज इसी महीने जारी किए जाएंगे। शकील, आपका शुक्रिया। 2031 तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज खत्म कर दिया जाएगा। हुकूमत ने IMF के साथ मुकम्मल प्लान शेयर कर दिया। गर्दिशी कर्ज में इजाफा 0 रखने और कैप्टिव पावर पर लेवी बढ़ाने की यकीन दहानी भी करा दी गई। जहीर अली की रिपोर्ट देखिए। IMF के दबाव ने हुकूमत को शोबा तवानाई में गर्दिशी कर्ज के घन चक्कर से निकलने के फैसले पर मजबूर कर दिया। आइंदा 6 बरसों में पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा मुकम्मल तौर पर खत्म करने का फैसला। हुकूमत ने ब्रीफिंग में आलमी मालियाती फंड को 2031 तक शोबा तवानाई में गर्दिशी कर्ज के खात्मे की यकीन दहानी करा दी। इस वक्त गर्दिशी कर्जा 1614 अरब रुपए है। तहम हुकूमत ने वाजे किया कि कर्ज में सालाना इजाफा 0 रखा जाएगा और कैप्टिव पावर पर लेवी की शरह बतदरीज बढ़ाई जाएगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि रवां माली साल पावर सेक्टर के लिए सब्सिडी 98 अरब रुपए कम खर्च की गई। सब्सिडी के लिए 1323 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे, जिनमें से 1225 अरब रुपए खर्च हुए। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात में 242 अरब रुपए की कमी लाई गई है। तहम IMF ने डिस्कोज लॉसेस का सालाना हदफ 639 अरब रुपए मुकर्रर किया है। अमरीकी सेनेट से अखराजात का बिल फिर मुस्तरद। 6 साल बाद अमेरिका में फिर शटडाउन। पहले ही स्टॉक मार्केट्स में भौचाल। न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट में 500 पॉइंट्स की कमी के बायस सरमायाकार परेशानी से दो चार हैं। अमेरिका में शटडाउन के बायस 400 से ज्यादा विफाकी इदारे बंद रहेंगे। 7,50,000 मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हो जाएंगे। व्हाइट हाउस ने डेमोक्रेटिक पार्टी को शटडाउन का जिम्मेदार करार दिया। आखिरी शटडाउन 2018 में सदर ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत में 35 दिन जारी रहा था। उधर फिलिपाइन के वस्ती साहिली इलाके में 6.9 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। कई इमारतें ज़मीन बोझ, हलाकतों की तादाद 69 तक पहुंच गई। 150 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ला मकामी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे आया। मरकज़ पालमपोन के मगरिब में था। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। वस्ती साहिली इलाके में आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए। इंडोनेशिया में भी ज़लज़ले के झटके रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली।